اسفر صاحبہ. مائک کھولیں ان کا. جی میں 1 منٹ ٹائمر لگا لوں. جی جی بالکل, اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو 1-2 منٹ ایکسٹرا دے دیجیے گا. تھینک یو اسپیکر صاحبہ. کوئی بھی قوم انکلوسیو ایجوکیشن سسٹم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی, اور جن قوموں نے اس حقیقت کو تسلیم کر کے اس پہ عمل کیا ان کو مثالی نتائج ملے ہیں, اور جن قوموں نے تعلیم کو اہمیت نہیں دی ان کا معاشرہ کرپشن اور نیپوٹزم کا شکار ہوا, اور سندھ اس کی زندہ مثال ہے. ایجوکیشن کرائسس سندھ کا ایک کرونک مسئلہ بن چکا ہے, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. غربت, ڈراپ آؤٹس اور ٹیچرز اور کرپشن وہ اہم ریزنز ہیں جس نے صوبے میں تعلیمی نظام کو مفلوج کر دیا ہے. آہستہ آہستہ تعلیم غریب کی پہنچ سے دور اور پریولیج کلاس کے لیے صرف رہ گئی ہے. سندھ میں بچوں کے حوالے سے کوئی 20 کے قریب قوانین ہیں. ان میں سے چند کے میں نام لینا چاہوں گی. رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن, چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ, چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ, پروہیبیشن آف کارپورل پنشمنٹ, سندھ بانڈڈ لیبر اینڈ سندھ آرفنیجز ایکٹ, اور بہت سے. لیکن ان سب کے باوجود صوبے میں 13 ملین بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہے. ان 13 ملین بچوں میں سے 6.4 ملین بچے آج بھی آؤٹ آف اسکول ہیں. 1.7 ملین بچے بانڈڈ لیبر میں ہیں, اور اسپیکر صاحبہ ان میں سے 7 لاکھ بچے وہ ہیں جو کہ بیسکلی ایکسٹریم ان ہیومن کنڈیشنز کے اندر کھیتوں میں وڈیروں کے غلام ہیں زمینداری کرنے کے لیے. 4.5 ملین بچے گورنمنٹ سکولز میں پڑھتے ہیں, جن میں سے 50% بچے ایسے ہیں جو کہ 5ویں کلاس کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں بیکاز آج بھی صوبے کے اندر سیکنڈری سکولز موجود نہیں ہیں. 49,000 سکولز ہیں صوبے بھر میں, اور ان میں سے 12,444 سکولز نان فنکشنل ہیں. صرف 2,750 سیکنڈری سکولز ہیں, اور 4.5 ملین بچوں کے لیے 1,33,000 ٹیچرز ہیں. اور ان میں سے بہت سے استاد پڑھانا پسند نہیں کرتے, وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں اور ایڈمنسٹریٹو جابس کے اندر کام کر رہے ہیں. ساحل کی رپورٹ کے مطابق, جو کہ ایک NGO ہے, ہر سال اپنے نمبرز ریلیز کرتی ہے, 885 بچوں نے سندھ کے اندر کسی نہ کسی فارم میں ابیوز ایکسپیرینس کیا. ان میں سے 190 کیسز ایسے ہیں جو کہ ایبڈکشن کے ہیں, 231 مسنگ چلڈرن کے ہیں, اور 81 کیسز اسپیکر صاحبہ چائلڈ میرج کے ہیں. ان تمام تر قوانین اور CM صاحب کی لفاظیوں کے باوجود سندھ کا بچہ اپنے فنڈامنٹل رائٹ سے محروم ہے. سندھ میں تعلیم کا بجٹ 326.8 بلین ہے, جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 11% انکریز ہے. 34.2 بلین ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, جو کہ پچھلے سال 27.5 تھا, اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ صرف 52% یوٹیلائز ہو سکا. CM سندھ نے مشہور زمانہ 4,560 سکولز کی ری ہیب کا ذکر ایک بار پھر اپنی تقریر میں کیا. فرق صرف اس بات کا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے کہا کہ 4,000 سکولز کی ریہیبلیٹیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے, لیکن میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ پوچھیں ڈپارٹمنٹ سے کہ یہ 4,000 سکول زمین پہ کہاں موجود ہیں, اور اگر اس کے شواہد ان کو مل جائیں تو پوچھیں ان سے کہ ان 4,000 سکولوں کو کیا فرنیچر مل گیا, کیونکہ پچھلے 8 سے 9 سال کے اندر آپ نے کسی ایک سکول کے اندر بھی فرنیچر پرووائڈ نہیں کیا. مراد علی شاہ صاحب بتاتے ہیں ہمیں کہ تعلیم ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ پچھلے 4 سال سے صوبہ اپنے ایجوکیشن پروفائل کی رپورٹ پبلش نہیں کرتا؟ آپ مسنگ فیسلٹیز کا سروے ہر سال کرتے ہیں, انرولمنٹ کے نمبرز آپ ہر سال نکالتے ہیں, ٹیچرز کا اسٹیٹسٹک اور لٹریسی انڈیکیٹرز ہر سال نکالتے ہیں, لیکن اب آپ کے اندر جگر نہیں ہے, ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ رپورٹ پبلش کر سکیں. پچھلے 10 سال میں تعلیم کا جو ڈیولپمنٹ کا تمام ذمہ داری ہے وہ آپ نے جائکا, ورلڈ بینک, ADB, USAID کے حوالے کیا ہوا ہے. تمام تر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ادارے صوبے کے لیے اٹھا رہے ہیں. ہاری ویلفیئر ایسوسی ایشن ایک ادارہ ہے جس نے پچھلے سال ایک سروے کیا اور کہا کہ 2021 جو ہے سندھ میں میگا کرپشن ایئر ڈکلیئر کیا جاتا ہے, اور یہ رپورٹ اس نے ملٹیپل انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پبلش کی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟
एजुकेशन सेक्टर का मेगा करप्शन ईयर है। वजह क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने SELD की शिकायत की जाके चीफ मिनिस्टर साहब से कि आप 320% प्रीमियम के ऊपर डुअल डेस्क जो स्कूल का फर्नीचर है वो खरीद रहे हैं, और जबकि 2019 के अंदर एक टेंडर हुआ जिसमें लोवेस्ट प्राइस 5,500 से 6,500 डेस्क की प्राइस थी, लेकिन उसमें प्रोक्योरमेंट नहीं की गई। उसके अननोन रीजंस हैं और कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी मिनिस्ट्री भी गंवाई उसकी वजह से। सूबे के अंदर 49% आबादी है खवातीन की, उसके लिए कितने स्कूल्स हैं प्राइमरी? 5,200, 457 स्कूल्स मिडिल हैं और 480 सिर्फ सेकेंडरी स्कूल्स हैं। हमारा जेंडर इक्वालिटी का ये हाल है। नेट एनरोलमेंट रेशियो हमारा 41% है जो प्राइमरी का है, और जो ड्रॉप होके सेकेंडरी लेवल पे सिर्फ 6% रह जाता है। और इसके रीजंस क्या हैं? लैक ऑफ फीमेल टीचर्स। हमारे सूबे का जो तनासुब है फीमेल टीचर्स का वो तमाम मुल्क में तमाम सूबों से सबसे ज़्यादा कम है। फिर डिस्टेंस का यह फैक्टर है, और फिर सबसे बड़ी बात, आज भी हमारे स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है। टीचर्स हमारे तालीमी निज़ाम का सबसे अहम पिलर है, और 70% एजुकेशन का बजट भी हमारा वही कंज्यूम कर जाते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है। हम टीचर्स भर्ती करते हैं इलेक्शंस के लिए। सीएम साहब ने बजट की तकरीर में हमें बताया कि 47,000 टीचर्स अपॉइंट किए गए। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, वो बुलाएं अपने डिपार्टमेंट को, वो बुलाएं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को और उनसे पूछें कि कितने अपॉइंटमेंट लेटर्स उन्होंने दिए हैं। 25,000 सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं। उसकी वजह क्या है कि जो आपने पासिंग क्राइटेरिया रखा था 50% का, वो ड्रॉप होके 40% पे भी आ गया, अब ड्रॉप होके 30% पे भी ले आए। उसके बावजूद भी आप 25,000 से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। और फिर आपने उसकी पॉलिसी जो है ड्यूरिंग हायरिंग प्रोसेस आप मुसलसल चेंज करें। अब कुछ लोग कोर्ट में चले जाएंगे और वहाँ के इस पूरी हायरिंग प्रोसेस को चैलेंज कर देंगे। सिंध में 29 टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मैं और फिरदौस साहब खुद दरसानो चन्नो कराची के अंदर गए थे, जहाँ पे कैनेडियन पार्टनरशिप के साथ आपने एक फुली अच्छा सा इक्विप्ड कंप्यूटराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है, और उसको लगाया हुआ है आपने ताला, क्योंकि आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन मैटर नहीं करती। अगर आपने क्वालिटी को लेकर आना है तो इन इंस्टीट्यूट्स को आपको बहाल करना होगा। सिंध में एक इदारा है स्टेडा के नाम से, सिंध टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर, इसको चीफ मिनिस्टर साहब हेड करते हैं। मैं इनको बताना चाहूंगी कि खुदारा अगर इनको आप लाइसेंस इशुएंस अथॉरिटी बना दीजिए, कम से कम वो कोई तो परफॉर्मेंस को मेजर कर सके, कोई तो असेस कर सके कि हमारे टीचर्स की क्वालिटी क्या है। आप बच्चे को तो एग्जाम लेके प्रमोशन देते हैं, दूसरी क्लास में एग्जाम और असेसमेंट के बाद टेस्ट लेके पास करते हैं, तो टीचर्स को भी उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर लीजिए और उसके बेसिस के ऊपर उनको आप लाइसेंस रिन्यू करिए या तरक्की दीजिए। वरना अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ खाना पूरी के लिए हम एजुकेशन के बजाय जो है वो इलेक्शन ऑफिसर्स बना दीजिए इनको। स्पीकर साहबा, मैं एजुकेशन का टॉपिक कंक्लूड करते हुए बताना चाहूंगी कि देखिए इतने नंबर्स का मसला है इस बुक्स के अंदर, बजट की बुक्स के अंदर। स्पीकर साहब ने इस स्पीच के अंदर मेंशन किया कि 1,70,000 बच्चों को उन्होंने नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर ट्रेनिंग दी 6,351 सेंटर्स में। बजट की बुक है 2021-22 सफ़ा नंबर 15। आप कहेंगे तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को ये किताब भिजवा दूंगी। यही नंबर आज दोबारा 2022 और 23 के अंदर बजट की बुक्स नंबर पेज नंबर 24 पे भी लिखा गया है। मेरी रिक्वेस्ट है सीएम साहब से, अगर आप बोर हो गए हैं, आप बजट की तकरीर करते करते थक चुके हैं और आपको कोई ऐसे इंडिकेटर्स नहीं मिल रहे जो कि आप चेंज के तौर पे दिखा सकें, तो आ जाइए, इस तरफ बैठ जाइए, हम संभाल लेते हैं इस शोबे को, क्योंकि आपसे तो आपके पास कोई नंबर्स नहीं है जो कि आप इंडिकेटर्स के ऊपर दिखा सकें। सिंध को डिस्ट्रप्टिव थिंकिंग की जरूरत है। हमने कोविड से नहीं सीखा। 2 साल तक इस सूबे के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तालीम से महरूम रहे। अब हम फिर भी उसके बावजूद भी फिर वो बिल्डिंग्स का बजट बना के बैठे हुए। क्यों नहीं हम डिवाइसेस और इंटरनेट की स्ट्रेटजी को लेकर आते एजुकेशन के अंदर? क्यों नहीं हम हाइब्रिड लर्निंग और डिजिटल लर्निंग या ब्लेंडेड लर्निंग को इनकॉर्पोरेट करते, ताकि इससे हमारा बच्चों का ड्रॉप आउट रेशियो कम हो, एनरोलमेंट बढ़े सूबे की, और कम से कम जो है वो क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकें।
स्पीकर साहबा, सोशल वेलफेयर के ऊपर बात करूंगी। सीएम साहब फरमाते हैं कि सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत पूरे 30 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स को फाइल कर दिया है। अगर उनको नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का कॉम्पोजिशन क्या है। उसमें एक एसएसपी होता है, एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है और सिटीजन्स होते हैं लोकल एरिया के। ये कॉम्पोजिशन होती है। प्लीज चैलेंज करती हूं मैं आपको, चले मेरे साथ किसी भी एसएसपी के पास, अब पूछे उससे कि उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का पता है। चैलेंज करती हूं मैं आपको उन इदारों में, सरकारी अस्पताल में चले मेरे साथ और पूछे कि जब आपके पास कोई अबैंडन बच्चा आता है तो आपको पहला फोन कॉल किस ऑफिसर को करनी होती है। चैलेंज करती हूं कि आप मेरे साथ चले इन ऑर्फनेजेस में और पूछें कि आखिरी दफा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ने आपके पास कब विजिट किया था। एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 1 लाख से ज्यादा बच्चे उनसे भीख मंगवाई जाती है। हमारे पास एंटी बैगरी का कानून नहीं है। अदालत के कहने के ऊपर आपने 400 बेडेड शेल्टर बनाया मलीर के अंदर, लेकिन उसको भी आपने ताला लगाया हुआ है, इसलिए कि आपके लोग काम नहीं करना चाहते, इसलिए कि आप में विल ही नहीं है कि आप इस सूबे के बच्चों को महफूज मुस्तकबिल दे सकें। प्लीज सीएम साहब, हर साल आप कुरंगी शेल्टर की बजट में अपनी तकरीर में उसका जिक्र करते हैं। खुदारा जो भी आपकी तकरीर लिखता है उससे कहें आपको शर्मिंदा ना करें। इस प्रोजेक्ट को निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि हर साल इसके अंदर आप जीरो बजट एलोकेशन करते हैं, हर साल अगले 2 साल आगे की तारीख दे देते हैं। ये प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। और चूंकि विल भी नहीं है, मलीर में 400 बेड का आपके पास सोशल शेल्टर होम मौजूद है, बट उसको आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते। सड़कों पे बच्चे जो हैं वो भीख मांगते फिर रहे हैं। चाइल्ड मैरिज के ऊपर बात करूंगी स्पीकर साहिबा। जुल्म होता है उन छोटे छोटे बच्चों के साथ, जब मैं समझती हूँ चाइल्ड मैरिज ज्यादती के जुमरे में आता है। सूबे के अंदर 81 चाइल्ड मैरिज केसेस पिछले साल रिपोर्ट किए गए हैं। स्टेट का फेलियर है। कानून सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट इसी असेंबली ने बनाया है, लेकिन न पुलिस, न प्रोसिक्यूशन, न कोई और इदारा खड़े होकर अदालत में इस कानून को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है, बल्कि वो कहते हैं कि बच्ची की मर्जी है, अपनी मर्जी से की है, इसको जाने दीजिए। 13 साल, 14 साल, 15 साल, 10 साल की बच्चियों जो हैं उनको फ्रॉडुलेंट मैरिज के बेसिस के ऊपर चाइल्ड ट्रैफिक किया जाता है, और हम कानून बनाकर किताबों को अलमारी में सजाते हैं, लाइब्रेरी में सजाया हुआ है, और कोर्टों में जाके बोलते हैं कि ये बच्ची ने अपनी मर्जी से किया, इसको जाने दीजिए। सिंध में मैं समझती हूं कि एक ही तरीका है कि आप चाइल्ड मैरिज को रोक सकते हैं कि आपको हर शादी करने वाला बच्चा और बच्ची का NIC कार्ड होना मस्ट है। वो किसी भी UC या कंटोनमेंट बोर्ड में जाके अपनी बायोमेट्रिक करे और उसके बेसिस के ऊपर उसकी शादी को वेरीफाई होना चाहिए। और फिर उसके बाद जब वो उसका सर्टिफिकेट रजिस्टर हो जाए तो वो नादरा की वेबसाइट के ऊपर मैरिज सर्टिफिकेट को अपलोड होना चाहिए। सिर्फ इसी तरीके से हम इस सूबे की दुआ ज़हरा को फ्रॉडुलेंट मैरिजेस से, चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बचा सकते हैं। दूसरा, हमें जिम्मेदारी देनी होगी कानूनी तौर पर कि पुलिस और हर वो इदारा जो किसी ना किसी तरह बच्चों के इश्यूज को डील करता है, वो ड्यूटी बाउंड हो कि अगर वो किसी भी बच्चे को किसी फॉर्म ऑफ अब्यूज के अंदर देखे तो वो रिपोर्ट करे। आज सूबे में ये जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है। ना चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ओनरशिप लेता है, ना पुलिस ओनरशिप लेती है, ना कोई और इदारा ओनरशिप लेता है, और आखिर में हमें यही देखना पड़ता है कि वो बच्चे बेचारे सड़कों पर दर बदर होते हैं और उनके माँ बाप जो हैं वो अपना सर पीटते रह जाते हैं। आखिरी में मैडम साहबा, थर के ऊपर बात करूंगी। मेरा थर आजकल मशहूर है खुदकुशी के हवाले से। पिछले साल 1,15,000 लोगों ने खुदकुशी की है, और नगर पाकर में सबसे ज्यादा बेसिकली रिपोर्ट किए गए। 68 खवातीन हैं जिन्होंने खुदकुशी की है, और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हेडलाइंस चलती हैं इसकी। और इसका रीजन क्या है? वट्टे सट्टे की शादी, सेक्सुअल अब्यूज, डिप्रेशन, एक्सप्लॉयटेशन, एडिक्शन, ये तमाम तर मसाइल हमारे थर के अंदर मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि सिंध के अंदर जान की कोई कीमत नहीं है। थर को उमरकोट कह के तमाम तर जितने डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो उमरकोट को मिलती हैं, कि मिट्टी थरपारकर का जबकि
कैपिटल है, उसके बावजूद भी पानी का प्रोजेक्ट आता है तो उमरकोट के अंदर, थर कोल बिजली पैदा करता है लेकिन थर रहता है अंधेरे के अंदर, एनईडी का कैंपस बनाते हैं लेकिन थर को कोटा देते हैं 5%, तालीम ख़त्म है वहाँ पे बच्चियों की, साफ पानी वहाँ पर नहीं है, कोई सस्टेनेबल पानी का प्रोजेक्ट नहीं है। 15 साल की हुकूमत के बावजूद भी अफसोस होता है कि इस असेंबली के अंदर कम से कम 5 से 6 लोग जो हैं वो एमपीएस थर्ड से वोट लेकर यहाँ पर आते हैं। कम से कम इतना तो कर दें कि उनके वोटों का हक अदा कर दीजिए, वरना अगली बार मैं समझती हूँ कि थारियों को फैसला करना होगा कि उनके असल नुमाइंदे कौन हैं, इनको लाके बिठाने का कोई फायदा नहीं है। आप अपना टाइमर देख लें। आखिर में मैडम साहिबा आपसे आखिरी बात करना चाहूंगी। मान था आपके ऊपर, हमें आपसे मान टूटा है। इस असेंबली के अंदर एक खातून का दुपट्टा खींचा गया, हम आपके पास आए, आज 6वां दिन है बल्कि 7वां दिन है, हमने इंतजार किया कि आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, इससे ज्यादा का नहीं मांगा था। हमने कहा था कोई कमेटी नहीं चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, लेकिन इस ऐवान के तकद्दुस के लिए कम से कम उस एमपीए को जिसका नाम शिराजी है उसको आप बोलते रियाज शिराजी साहब को कि वो माइक पे खड़े होकर माफी मांगे, लेकिन आपने नहीं किया। ये शायद मेरी आखिरी बजट स्पीच है इस ऐवान में, लेकिन आपने कमिटमेंट अपना पूरा नहीं किया। मैं किसी और से गिला नहीं कर रही, आप खुद एक औरत हैं, इस मनसब पे जिस कुर्सी पे बैठी हुई है उससे मान था हमारा, वो आज बहैसियत औरत वो मान मेरा टूटा है, इसलिए मुझे जरूरी था इस बात को दोबारा। मायूसी की बातें नहीं करें। नहीं, मैं इतनी मायूसी की बातें नहीं करें। मायूसी की बात नहीं। रिपोर्ट देखिए, मेरे पास रिपोर्ट आती है, उसके बाद अगर ये मुदावा नहीं हो सका कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है, लेकिन इस तरह से नहीं कहें, इस तरह से नहीं कहें। अभी रिपोर्ट आनी है, अभी से आप यकीन तोड़ना शुरू करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट। उस रिपोर्ट के अंदर आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो क्लिप तो मौजूद है। आपने ये कहा था, नासिर हुसैन शाह साहब ने खुर्रम शेख जमान से कहा था कि माइक पे खड़े होकर रियाज शिराजी साहब माफी मांगेंगे, उसके बजाय माइक इस्तेमाल हुआ मुकेश साहब का और उन्होंने मजीद बदतमीजी की। तो मेरी रिपोर्ट आने दें, मेरी रिक्वेस्ट है मुझे दे देंगे, आज तक रिपोर्ट दे देंगे मुझे। स्पीकर साहिबा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इन्वेस्टिगेशन हो या ना हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, वो जो मान आपका हमारा इस कुर्सी के साथ और औरत होने के नाते वो टूटा है, वो मुझे जल्दी नहीं तोड़ें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। शाहना अशर साहिबा।